Very good morning to all of you. This is Vinita as maths teacher for class 9th from Bal Bharti Vidyapeeth Gohana. So dear students, welcome to maths class. In our previous video, we have already discussed about basic concept of polynomials. Now we are going to start the class with exercise 2.1. So let's begin. So our first question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. So dear, let's start with the solution. Question number 1. We are having an expression 4x square minus 3x plus 7, and we have to tell according to the question that क्या ये एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है, क्या बच्चे ये पॉलिनॉमियल है एंड polynomial in one variable or other than else. Okay, so you just see here we are having the highest degree 2, and according to the polynomial we are having the condition कि जो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, इट मीन्स जो डिग्री होती है, दैट शुड बी अ होल नंबर. वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए. सो इफ़ now we are having x raised to power 2, it means variable is having the power that is a whole number, so we can say that it is a polynomial. ये polynomial है. Okay, and now you just see we are having variable x, here also we are having x, it means in a one variable. So yes, in one variable this expression is a polynomial because its highest power or highest degree is a whole number. Okay, second point, y square plus अंडर रूट 2. अब बच्चे ये देखिए, पावर्स हमेशा हम वेरिएबल्स की देखते हैं, वेरिएबल तो एक ही है, तो येस इन वन वेरिएबल. और पॉलिनॉमियल कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या गिवन है बच्चे? 2, एंड 2 इज़ अ होल नंबर. Okay, so we can say that this expression is a polynomial in one variable. Clear? Third point, 3 under root t plus t under root 2. So बच्चे you just see here we are having one variable, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, so variable तो one है, but the power is not given here. We are having under root, और अंडर रूट को जब हमें हटाना होता है बच्चे, रिमूव करना होता है, सो हम उसके प्लेस पे पावर ऐड कर देते हैं 1/2. इट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट 3t रेज टू पावर 1/2. हम उसको कर सकते हैं 3t रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं. अब 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, सो नो इट्स डिग्री इज़ 1/2, दैट इज़ नॉट अ होल नंबर. तो जब वो होल नंबर ही नहीं है, इट मीन्स वो एक पॉलिनॉमियल भी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, y प्लस 2/y. अब देखो बच्चे, y वन वेरिएबल तो है, एक ही वेरिएबल है मान लिया, बट वी हैव टू प्रूव दैट कि क्या ये पॉलिनॉमियल है. सो बच्चे यू जस्ट सी, अब y बाय में है, अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो आप y की पावर क्या ऐड करोगे? -1. ओके, इन्वर्स हो जाएगा ना रेसिप्रोकल करने के लिए, हमें उसका क्या करना होगा? पावर नेगेटिव करनी होगी, और -1 इट मीन्स नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर होल नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होते. सो नो, what is the reason behind that? Because its highest degree, because its highest power is -1, that is not a whole number, so we cannot say that this is a polynomial. Okay, last one, x raised to power 10 y raised to power 30 plus z raised to power 50. अब देखो बच्चे, इसमें डायरेक्टली आपके पास क्या गिवन है? 3 वेरिएबल्स. सो ये पॉलिनॉमियल है, बट इट इज़ ऑफ 3 वेरिएबल्स. पॉलिनॉमियल है, येस, क्योंकि इसमें जितने भी पावर्स हैं वो सब होल नंबर है, और हाईएस्ट पावर 50 है, वो भी एक होल नंबर है. पॉलिनॉमियल है, येस, बट इट इज़ ऑफ 3 वेरिएबल्स. ओके, क्योंकि इसमें x y z 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. ओके, गॉट इट? सो डियर, according to the second question we have to find out the coefficient of x square, and as we know coefficient is the integer that would be in the form of product with the variable. Okay, so let's begin with the first point. As we are having 2 plus x square plus x,
अब यहाँ पे देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट निकालना है और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट में कोई भी आपके पास वेरिएबल गिवन नहीं है. ओके, सो इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ नंबर बिफोर दैट वेरिएबल, सो वी जस्ट सपोज इट 1, हम उसको 1 लेट कर सकते हैं. सो what is the coefficient of x square? What do you think? एंड वी नो दैट कि हमें उस नंबर को, उस कांस्टेंट वैल्यू को हमें उसके साइन के साथ पिक करना होता है. सो दैट वुड बी +1. सो +1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नेक्स्टली 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब बच्चे वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसके आगे भी कोई नंबर नहीं था. अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल, वी हैव टू लेट 1 हेयर. So what about the coefficient of that? We have to let it with sign. So -1 is the coefficient of x square. Next is pi by 2 x square. So x square के साथ क्या given है बच्चे? pi by 2. So that would be the coefficient of x square. अब बच्चे यहाँ पे देखिए, इस एक्सप्रेशन में तो आपके पास x square कहीं पे given ही नहीं है, नहीं given ना. So what do you think? What is the coefficient for that? No coefficient means to say 0. The third question, we have to write down two types of polynomial. One is of binomial and nextly second is of monomial. So binomial means a polynomial having two terms and monomial means only one term. So we just write here only one term and here we just write two terms. Okay, now according to this point we have to write down the highest degree 35. सो बच्चे कांस्टेंट की तो पावर गिवन नहीं होती ना. सो डिग्री हाईएस्ट पावर किसकी बनाओगे आप? वेरिएबल की. तो कितनी होनी चाहिए? 35. सो यू जस्ट राइट इट 35. यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल टू जिसमें 2 टर्म्स होंगी और हाईएस्ट डिग्री उसकी 35 होगी. सेम एज वी आर जस्ट टेकिंग 1 टर्म 4x एंड व्हाट विल बी द डिग्री? डिग्री क्या होनी चाहिए? 100. सो वी जस्ट राइट डाउन x रेज़ टू पावर 100. तो यहाँ पे आप वेरिएबल डिफरेंट यूज़ कर सकते हो. ओके, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो. क्लियर? तो डियर, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव टू टेल डिग्री. इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ दीज 4 पॉलिनोमियल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. वी आर हैविंग 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. सो बच्चे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर क्या है? 3. यहाँ पावर क्या है? 2. ओके, अब यहाँ पे पावर गिवन नहीं है तो वी जस्ट राइट इट 1. सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर? आप बताइए बच्चे, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर फॉर दैट? 3. सो हाईएस्ट डिग्री मीन्स डिग्री इज 3. ओके, नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर. अब बच्चे देखो, कांस्टेंट नंबर की तो कोई पावर होती ही नहीं है. सो यहाँ पे a की पावर है 2, तो वही हाईएस्ट होगी. तो 2 इज़ द डिग्री. नेक्स्ट 5t माइनस √7. सेम पॉइंट, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें पावर गिवन नहीं होती. यहाँ पे 5t, t की पावर क्या गिवन होगी? 1, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो वी जस्ट लेट इट 1 ना. सो व्हाट विल बी द डिग्री? 1. नेक्स्ट 3. अब बच्चे देखिए, 3 को हम, ये देखो हमारे पास क्या है बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं होता. ओके, लेकिन अगर हमें डिग्री बतानी है तो वी जस्ट नीड वेरिएबल टू. सो विद दैट व्हाट वी डू दैट, वी जस्ट राइट 3 एज इन दिस फॉर्म. 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 को हम x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 कर देते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू 1. 1 के इक्वल हो जाता है. तो हमने यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या पुट कर दिया? x रेज़ टू पावर 0. ओके, सो नाउ इफ़ वी आर हैविंग 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 0, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3. So what do you think? Variable carry which power? Variable के पास कितनी पावर है? 0. So 0 is the answer. Clear? Now last and fifth question. According to this question, we have to classify are these 5 polynomials under linear polynomial, quadric polynomial and cubic. As you know, अगर उसकी highest power 1 होगी दैट वुड बी लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो हो गया क्वाड्रिक,
एंड हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक. सो लेट्स बिगन. अब यहाँ पे है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी पावर को आप 1 लेट कर सकते हो. सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर, 2, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है दैट वुड बी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर क्या लेट करोगे, 1, यहाँ पे क्या है 3. ओके, सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर इन दैट, 3 ना. व्हाट डू यू थिंक, 3 is the highest power or not? Yes. Okay, so if highest power is 3, then what type of polynomial it is? Cubic. So cubic is the solution. Y raised to power not given, so we just let it 1, plus y square plus 4. So which one of the following are highest power? Which number is the highest power? 2 na. So if highest power is 2, that polynomial is called quadric. Okay. नेक्स्ट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1, क्योंकि पावर यहाँ गिवन नहीं थी तो हमने क्या लेट कर लिया 1. सो 1 इज़ द हाईएस्ट पावर, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, लीनियर. सो लीनियर पॉलिनोमियल इज़ द सॉल्यूशन. नेक्स्ट 3t रेज टू पावर 1 मीन्स टू से एक आपके पास एक वेरिएबल है t, उसकी पावर क्या है, कुछ भी गिवन नहीं थी, सो वी जस्ट लेट इट 1. तो अगर इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड linear polynomial. Okay, clear? So thank you, have a nice day.